Hello everyone, I welcome you all again to the YouTube session for Maharashtra Board FYJC Bookkeeping and Accountancy on our Vedantu platform. People, if you are joining for the first time, the very first thing I would like you to do is please subscribe to our channel ताकि आपका जो भी आपको सेशंस अटेंड करना है वो आप अच्छे से अटेंड कर पाए. सो आई वेलकम यू ऑल टू वेदांतु कॉमर्स. यहाँ पे हम आपको कैटर करते हैं फॉर योर 11th and 12th CBSE एज वेल एज 11th and 12th MH बोर्ड रिलेटेड सिलेबस. सो आज हम बात करेंगे अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को, हाउ टू अप्लाई देम इन ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी है उनमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स उसमें गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई करें ये हमें यहां पे देखना है. सो लास्ट सेशन वी ऑलरेडी हैव स्टडीड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डू यू रिमेंबर? तो उसी को आगे आज कंटिन्यू करना है हमें. सो लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, if you are new to the channel, please like, share and subscribe to our V-Commerce channel and also don't miss to hit a bell icon ताकि जो भी सेशंस आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. तो now let us proceed with our chapter 2. This is our session number 2. Like I have told you in session 1 we have discussed about double entry bookkeeping system और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से golden rules of accounts है हमारे पास. So today what we're gonna do is we'll practically apply these golden rules of accounting and let us understand how the transactions carry forward with help of these golden rules of accounting. So are you guys ready? क्या आप रेडी हो? सो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड हियर वी गो. बट ऑब्वियसली जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं बिफोर स्टार्टिंग विद द फ्रेश सेशन, थोड़ा सा अगर हम रिवीजन कर पाए तो इट इज ऑलवेज बेटर, एक कनेक्ट मिलता है. सो लेट अस गो फॉर रिवीजन. लेट्स स्टार्ट विद अ रिवीजन. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. व्हिच आर दोस? ये हमने किया है, लास्ट सेशन ही किया है. You can always put your answers in comment box ताकि मैं पढ़ते रहूं वो. So first type is personal account, second one is real account and the third one is nominal account. When we talk about traditional approach, ये 3 टाइप हमारे पास है, personal, real and nominal. Now we have learned many things under this personal account, real account, nominal account. तो उसका हमने गोल्डन रूल्स भी पढ़ा था. सो फॉर पर्सनल अकाउंट द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये अपना रूल है गोल्डन अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट फॉर पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर रिसीवर का बात है तो उसको डेबिट करना है, अगर कोई पर्सनल अकाउंट गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है सिंपली. नाउ द सेकंड गोल्डन रूल इज फॉर रियल अकाउंट विच इज वेरी सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करो, बिजनेस से जाता है तो उसको क्रेडिट करो. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड फाइनली द थर्ड रूल इज फॉर द रिमेनिंग अकाउंट विच इज नॉमिनल अकाउंट, जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. आई होप ये रूल्स अब तक आपने बाय हार्ट कर लिए हैं, याद रख लिए हैं, क्योंकि ये रूल्स आज बहुत काम आने वाले हैं. Once again, personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit all expenses, losses, credit all incomes and gains. So based on this, let us start with application of this golden rules of account. Using the golden rules, let us solve question. So ये देखो, ये transactions है हमारे पास. आप अगर देख पा रहे हो तो एक 5 transaction है अपने पास. First one is commenced business with cash rupees 20,000. Second, purchased goods on credit from Ajay rupees 10,000. Cash sales is 7,000 and received commission 500 और last है paid rent 800. So fair transactions, business transactions है. Do you agree? So now let us apply rules and let us make them into debit and credit. Let us convert them into debit and credit. So here we go. The very first thing what you'll do is find 2 aspects in that transaction. ठीक है? There are always 2 aspects, like we have studied this at the time of concepts as well.
बराबर है ना। कॉन्सेप्ट में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने जब देखा था, मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. सो देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स, one debit another credit. Then we have to find two accounts. To start with, we'll find two accounts. There might be possibility that there are more than two accounts, so how to tackle everything I'll let you know, but we'll go slowly and steadily. थोड़ा आराम से जाएंगे. तो पहले दो एस्पेक्ट चूज करेंगे, that is find out करेंगे, दो अकाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद वी विल क्लासिफाई दीज अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल. सो हियर वी गो. सबसे पहले हमें एस्पेक्ट ढूंढना है फॉर द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹20,000. तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, हमने बिजनेस कमेंस किया है विद कैश. सो व्हाट डू यू थिंक? द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश बिजनेस में आ रहा है. सो द फर्स्ट थिंग इज कैश कम्स इन. सेकेंड, बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, मतलब प्रोप्राइटर, हम गिवर है of that cash to the business. It is capital, right? So cash comes in and proprietor is giver. ये दो एस्पेक्ट हो गए. कोई कुछ डाउट, कोई शंका, कुशंका? नहीं? वेरी गुड. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000. क्या किया? गुड्स परचेज किया. किससे परचेज किया? अजय से. कैसे परचेज किया? क्रेडिट बेसिस पे. मतलब गुड्स तो आया, पैसा देना बाकी है. किसको देंगे? अजय को देंगे. सो बेस्ड ऑन इट द टू एस्पेक्ट्स आर परचेज इज एन एक्सपेंडिचर फॉर अस एंड अजय इज द गिवर ऑफ दोज गुड्स. फिलहाल कैश का बात ही नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे गुड्स लिया है, राइट? सो परचेज इज एन एक्सपेंस एंड अजय इज गिवर. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन, इट इज कैश सेल्स ₹7,000. अभी कैश सेल्स जैसे ही हमने बोल दिया 7,000, एक तो बात पक्की है, कैश सेल्स मतलब या कैश बेचा नहीं, कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश. तो व्हाइल चूजिंग द एस्पेक्ट यू हैव टू नो कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम. बराबर, कैश आ रहा है, कैश में गुड्स सेल किया है, तो गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज आर इनकम. हमें पैसा मिला है. नाउ द फोर्थ वन इज रिसीव्ड कमीशन ₹500. सोचेंगे जरा, कमीशन रिसीव हुआ मतलब क्या मिला? व्हाट कम्स इन? कमीशन मिला मतलब क्या मिला? एक्चुअली क्या मिला? मनी, मनी, मनी. सो अगेन कैश कम्स इन एंड क्योंकि ये कमीशन रिसीव्ड बोला है, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. सेम जैसे थर्ड का हमने देखा, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम, वैसे ही फोर्थ के लिए कैश कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. उसके बाद फिफ्थ वन है पेड रेंट 800. टोटली अपोजिट ऑफ व्हाट वी डिड राइट नाउ. सो रेंट पे किया मतलब एक्चुअली क्या पे करेंगे हम लोग? रेंट पे करेंगे मतलब कैश पे करेंगे. सो पहला एस्पेक्ट होगा कैश पेड, कैश गोज आउट. दूसरा रेंट क्या है? पे कर रहे हैं मतलब वो अपने लिए एक्सपेंस है, राइट? सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स वी हैव. रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट. तो ये दो एस्पेक्ट है. हो सकता है कि मैं जहां पे स्क्रीन पे हूं उसके वजह से सेकेंड एस्पेक्ट आपको पूरा ना दिखता हो, तो डेफिनेटली व्हाट आई डू इज, जरा 2 सेकेंड के लिए आई विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन ताकि आप ये ठीक से देख पाओ. नाउ आई सपोज आपको ये बराबर दिखता रहेगा सेकेंड एस्पेक्ट भी. एंड देन लेट मी कम इनटू द पिक्चर अगेन. सो नाउ पीपल, ये दो एस्पेक्ट हमने हर एक ट्रांजैक्शन के तय किए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ. 11th स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है ताकि आगे जाके हमें कोई भी दिक्कत ना आए. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, कन्वर्टिंग योर ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल एंट्री, जो आगे मैं बताऊंगा आपको वापस, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वेरी बेसिक स्टेप फॉर इट. आप ट्रांजैक्शन को एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. Every aspect will be attached with some of the account. Like the very first thing is commenced business with cash 20,000. Let me again move out of screen क्योंकि वापस वो आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा. Okay, so commenced business with cash ₹20,000. ये अपना ट्रांजैक्शन था जिसका हमने एस्पेक्ट लिखा था कैश कम्स इन. सो एस्पेक्ट है कैश कम्स इन, तो अकाउंट होगा कैश अकाउंट. और दूसरा एस्पेक्ट था प्रोप्राइटर इज गिवर.
अगर प्रोप्राइटर खुद के बिजनेस के लिए कैश, गुड्स या एनी अदर थिंग इफ ही प्रोवाइड्स, इसको बोला जाता है कैपिटल. सो दैट इज द रीजन द सेकेंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट. Then moving forward with the next one. Now the next transaction is purchased goods on credit from Ajay rupees 10,000. ये ट्रांजैक्शन है. ऑलरेडी हमने एस्पेक्ट तो जान लिया है इसका. व्हाट इज द एस्पेक्ट? तो परचेस इज एन एक्सपेंस एंड अजय इज गिवर. तो परचेस इज एन एक्सपेंस, जैसे मैंने बोला परचेस अकाउंट अफेक्ट होगा एंड अजय इज गिवर, वहां पे अजय अकाउंट अफेक्ट हो गया. आई होप यू गाइज आर गेटिंग. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, अजय अकाउंट, कौन से टाइप के अकाउंट्स है, दैट यू कैन इजीली गेट इट नाउ. नाउ द थर्ड वन इज कैश सेल्स 7,000. दो एस्पेक्ट क्या थे? कैश कम्स इन और दूसरा था सेल इज एन इनकम. तो कैश कम्स इन में अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट. सेल्स अकाउंट बोलेंगे उसको, सेल्स इज एन इनकम, सो इट इज सेल्स अकाउंट. सो दैट इज द अकाउंट विच इज अफेक्टेड. द फोर्थ वन नाउ, रिसीव्ड कमीशन 500. हमें कमीशन रिसीव हुआ है 500 का. एस्पेक्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा था कैश कम्स इन, ये एक एस्पेक्ट होगा और दूसरा होगा कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. करेक्ट. सो कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. Alternatively, you can also say commission received account for it. Correct. You can also say commission received account for it. तो ये दो अकाउंट है, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. एंड फाइनली पेड रेंट और रेंट पेड रुपीज 800. तो हमने देखा था रेंट इज एन एक्सपेंस एंड क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं तो कैश इज गोइंग आउट. तो रेंट अकाउंट एक आएगा, दूसरा आएगा कैश अकाउंट. सो ये दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है इन ईच ट्रांजैक्शन. सो वी हैव 5 ट्रांजैक्शंस, वी हैव 5 अकाउंट्स व्हिच आर अफेक्टेड फॉर one aspect and 5 accounts which are affected for another aspect. दो aspect के दो accounts. I hope everybody is getting this. Now moving forward, आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में. So क्लासिफिकेशन के लिए अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले एस्पेक्ट है कैश कम्स इन, कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट इज विच काइंड ऑफ अकाउंट डू यू थिंक? दूसरा एस्पेक्ट प्रोप्राइटरीज गिवर, कैपिटल अकाउंट, इट इज विच काइंड ऑफ अकाउंट? सो वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, कैश इज अ रियल अकाउंट, इट इज प्रॉपर्टी, इट इज एसेट, सो रियल अकाउंट. प्रोप्राइटर इज giver of that cash, it is capital. Capital is representative personal account, right? In personal account we have seen there are different types of personal accounts, correct? One is natural person, one is artificial person, other is representative. So capital represents proprietor. Capital किसने दिया? तो हमेशा proprietor ने दिया. So it is personal account. Moving forward with second transaction, purchase is nominal account because as we have seen in aspect itself, purchase ये expense है और अगर purchase expense है तो nominal account में जाएगा. Ajay is the second account which is simple, it is personal account. Then third transaction we have cash account. Cash account में obviously again it is real account like we have discussed it in first transaction. Cash account is real account and sales account. Now as our aspect says, sales is income. Income कहाँ पे आता है? Do you know the golden rule? Income, it is nominal account. Then moving forward, let us go for the next one, which is cash account again, which is real account, and then commission account, which is nominal account. Commission, yet again, it is our income. That is the reason we are considering it as nominal account. Similarly, for next transaction, which is rent, which is an expense, again expense loss, income gain, whatever you say, will come under nominal account. And then cash goes out, which is cash account yet again, which is real account. So this is what they have told us to do. 2 aspects we have to find out, 2 accounts we have to find out, and classification of these accounts into personal, real or nominal. So this is what we will be doing and we'll be finishing our solution
आपको मीनवाइल कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स पे, आई आंसर टू इट इन माय नेक्स्ट सेशंस। ऑल्सो अगर आप पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक का बटन दबा दो ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए। सो नाउ पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें एनालाइज करना है ये ट्रांजैक्शंस, और डेबिट क्रेडिट का रूल भी अप्लाई करना है। 6 ट्रांजैक्शन दिया है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, बट हमें रूल अप्लाई करना है। ठीक है, सो शैल वी गो अहेड विद इट। Commenced business with cash 50,000. Advertisement paid 5,000 to Imran. Deposited cash into Bank of India 10,000. Purchased goods from Sunil 13,000. Sold goods for cash 12,000. And finally we have received commission 4,500. तो हमें ये याद रखना है, अभी हमें उसको एनालाइज करना है। वी हैव टू ब्रेक डाउन दीज ट्रांजैक्शंस। तो बहुत बड़ा सा एक टेबल भी हम बनाएंगे इसके लिए। So here we go. Let us try to understand this. Look at it. Look at the table, people. ठीक है, इसीलिए मैं छोटा सा कॉर्नर में रुका हूँ। जैसे जैसे टेबल नीचे आते जाएगा, I'll remove myself from it ताकि आपको ठीक से दिख पाए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। So सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है, commenced business with cash 50,000। तो दो एस्पेक्ट, दो इफेक्ट क्या होंगे इसके। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे कैश से, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। किसने दिया ये? तो ऑब्वियसली प्रोप्राइटर ने दिया होगा। प्रोप्राइटर इज अ गिवर ऑफ दिस कैश, ऑफ दिस कैपिटल, विल कॉल इट एज। तो ये दो एस्पेक्ट होने के बाद हमें ये तय करना है कि विच आर द अकाउंट्स अफेक्टेड, विच आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो सबसे पहले तो कैश कम्स इन बोला है, तो कैश अकाउंट तो आना ही है। दूसरा आएगा कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इट इज कैपिटल विच इज गिवन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन बिजनेस। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का बात करें तो अभी अभी हमने ये देखा है, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। नाउ यू शुड बी नोइंग द रूल्स। ठीक है, पहले एक वार्म अप क्वेश्चन हमने किया जहां पे हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तक देखा। अभी यहां पे आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट हमें परफेक्टली रूल अप्लाई करना है। यहां पे क्या हो रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो रूल एप्लीकेबल विल बी व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट। सो नाउ अगेन फॉर पर्सनल अकाउंट अपना रूल क्या है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम क्या बोल रहे हैं, कैश किसने दिया है, प्रोप्राइटर ने दिया है। कैपिटल इज गिवन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज गिवर फॉर कैपिटल, सो इसीलिए रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट द गिवर। यस, सो अकाउंट्स टू बी डेबिटेड में आएगा रियल अकाउंट, दैट इज कैश अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे, एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आई लेट यू नो द फ्लो वंस अगेन, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन हमें यही फ्लो में जाना है। हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा, हमने दो एस्पेक्ट्स पता किए, दो एस्पेक्ट से हमने अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है वो पता किया, अकाउंट कौन से क्लासिफाई किया हमने, कौन से ये अकाउंट है, कौन से टाइप के अकाउंट है ये देखा, फिर हमने रूल अप्लाई किया, स्पेसिफिक रूल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप, और फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश और कैपिटल, उसमें से डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा। इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, cash account is been debited and capital account is been credited. Is it fine? Moving further, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी ऑब्वियसली। एक दिन में फटाक से एक ही ट्रांजैक्शन में हमें आ गया, ऐसा बहुत कम बार होगा, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के लिए ये बात जहन में डाल दो, प्रैक्टिस विल बी वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ शायद आपको लगेगा भी कि हाँ सर समझ गया, इसमें क्या है सर, इट इज इजी, बट खुद करने जाओगे तो समझेगा हम कितने पानी में हैं। सो पीपल, हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये देखिए, एडवर्टीजमेंट पेड 5,000 टू इमरान, दिस इज अ ट्रांजैक्शन पीपल।
राइट, एडवर्टीजमेंट पेड 5,000 टू इमरान। नाउ एडवर्टीजमेंट हमने पे किया है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट अपना एक्सपेंस है, सो दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस। कैश पे किया मतलब गोइंग आउट है, सो कैश गोज आउट, इट इज आवर सेकेंड इफेक्ट। अभी जैसे ही मैंने ये तय कर लिया कि इफेक्ट क्या है, तो दोनों अकाउंट मिलना मुझे आसान हो गया। एक अकाउंट हो सकता है एडवर्टीजमेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट हो सकता है कैश अकाउंट। हो सकता है नहीं, वही दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट लाइक वी आर कॉलिंग इट एज एक्सपेंस पीपल, हम लोग उसको एक्सपेंस बोल रहे हैं। सो एडवर्टीजमेंट इज नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। अभी देखो, एक के आगे एक धीरे धीरे अपने आप ही आते जाएगा। अभी जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट को एक्सपेंस बोला, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, तो वो एक्सपेंस वाला ही तो पार्ट आई हैव टू अप्लाई। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। कैश अकाउंट एज इट इज गोइंग आउट, इट इज रियल अकाउंट, रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर टाइम बीइंग यू कैन अप्लाई फुल, यू कैन से फुल रूल कि रियल अकाउंट का सर रूल क्या है, तो डायरेक्ट क्रेडिट नहीं आता, मुझे डेबिट से स्टार्ट करना पड़ता है। इट इज फाइन, इनिशियली ऐसा होगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, तो कैश इज गोइंग आउट, सो हमें अप्लाई करना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इससे हमें पता चला कि डेबिट एडवर्टीजमेंट अकाउंट को करेंगे एंड क्रेडिट कैश अकाउंट को करेंगे। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो ये हो गया अपना सेकेंड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। हमने कैश उठाया और बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो पहले तो ये हमें याद रखना है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जो भी कैश हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, इट इज अज्यूम कि ये बिजनेस का कैश हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ही यू कैन सी दैट ट्रांजैक्शन। नो, इफ इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाउ यू कैन सी इट? करेक्ट। सो बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर एंड कैश गोज आउट। बैंक ऑफ इंडिया में मैंने डिपॉजिट किया, मतलब बैंक ऑफ इंडिया, बैंक वी ट्रीट इट एज personal account when we talk about traditional approach, correct? So bank is receiver and cash is going out. So एक account हो गया बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। लाइक आई सेड जस्ट नाउ, बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। अभी आप बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या है? रिसीवर है, तो वही वाला डेबिट वाला ही यूज करेंगे रूल, डेबिट द रिसीवर। रियल अकाउंट रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आया कि गया, कैश वी आर टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक बैलेंस, प्लीज डोंट कंफ्यूज योर माइंड, ओके? वी आर टॉकिंग अबाउट कैश, बिजनेस में आया कि गया, गया बैंक में गया, तो कैश गोज आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इसी का मतलब डेबिट मैं करूंगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड क्रेडिट इज कैश अकाउंट, अकाउंट क्रेडिटेड में रहेगा कैश अकाउंट। So this is how simply we have to move forward. Now fourth transaction, I'll show you the transaction and I'll wait for 1 or 2 minutes. Okay, I'll wait for 1 or 2 minutes ताकि आप भी इस पे ध्यान दो, आप भी इसके बारे में सोच सको। So transaction है purchased goods from Sunil, purchased goods from Sunil 13,000। तो गुड्स परचेज किया मतलब ये अपना एक्सपेंस है, और सुनील से हमने ये गुड्स परचेज किया है। सो लेट मी पुट दिस ऑल्सो, ये देखिए, ऑन क्रेडिट टू बी वेरी श्योर। इनिशियली हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो टू बी वेरी श्योर मैंने थोड़ा सा इसको एडिट कर दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000 ऑन क्रेडिट। सो मैंने सुनील से गुड्स परचेज किया, सो परचेज इज माय एक्सपेंस, एंड सुनील से मैंने ये उधार पे गुड्स लिया है, मतलब सुनील ने अभी ये गुड्स दिया, सुनील को पैसा देना बाकी है। इफ आई डोंट राइट दिस ऑन क्रेडिट, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए टू स्टार्ट विद सिंपल रखेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैसे जज करे एवरीथिंग। सो परचेज इज एन एक्सपेंस एंड सुनील इज गिवर, तो इसीलिए मेरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है परचेस अकाउंट और दूसरा है सुनील अकाउंट, करेक्ट?
Now purchase account is nominal account, Sunil account is personal account. परचेस एक्सपेंस से हम बोल ही रहे तो नॉमिनल अकाउंट कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डेबिट वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस. सुनील गिवर है, उसने गुड्स दिया है, हमने उससे परचेस किया है, मतलब ही उसी ने दिया है. सो सुनील के लिए क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. सो डेबिट अकाउंट में क्या आएगा? परचेस. क्रेडिट में आएगा सुनील. फिफ्थ वन, आई विल वेट, you analyze the transaction. Sold goods for cash. I'll wait for 1 minute. तीन ट्रांजैक्शन मैंने बताए पूरे. फोर्थ ट्रांजैक्शन से आप पहले ट्राई कर लो, फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए. So sold goods for cash 12,000. गुड्स सेल किया है, कैश के लिए सेल किया है, मतलब कैश आया, गुड्स गया. कैश कम्स इन, गुड्स आर गोइंग आउट, बट दिस इज सेल. इफ आई एम सेलिंग गुड्स एंड आई एम गेटिंग कैश, इट इज माई इनकम. सेल इज माई इनकम. So that is the reason cash comes in is one of the aspect and sale is an income is a second aspect for us. We have understood, no? For goods, we'll talk in purchase, sale, purchase return, sales return, etc. So sale is our income. So cash account and sales account. Cash is real account, sales is nominal account. Cash comes in, debit what comes in. Sale is income, credit all incomes. So debit में will write cash account, credit will write sales account. So this is how you will be recording these transactions again. Cash account debit, sales account credit. Yes. And finally the next transaction, received commission 4,500. कमीशन रिसीव हुआ मतलब एक्चुअली क्या मिला? कमीशन मिला मतलब क्या मिला? सो कमीशन रिसीव्ड मींस वी हैव रिसीव्ड कैश. सो कैश कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड इज आवर इनकम. क्योंकि पैसा मिला है तो कमीशन रिसीव्ड इज आवर इनकम. सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट, राइट? कैश कम्स इन में देयर विल बी अ कैश अकाउंट and also commission received. So there is a commission account, or alternatively you can always say commission received account. Cash account is which type? It is a real account. Commission account, received income, it is nominal account. So real account का रूल क्या है? डेबिट what comes in, credit what goes out. यहाँ पे कैश comes in है, so उतना ही रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट what comes in. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन. यहाँ पे कमीशन अपना इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. सो नाउ बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि डेबिट क्या करना है तो कैश अकाउंट करना है. सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड. क्रेडिट किसको करना है तो कमीशन अकाउंट को करना है. सो कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड. दिस इज हाउ इट विल बी. करेक्ट? तो ऐसे हमें ट्रांजैक्शंस पूछे जा सकते हैं इन स्कूल्स, in colleges. Okay, so you have to write this table down और systematically उसको analyze करते करते हमें end तक पहुंचना है कि which account is to be debited and which account is to be credited. कोई शक या सवाल आपको अभी इसमें? Amazing. ये देखो, this is the final draft we have. Now if you have any doubt, anything, we are always there to help you out. आपको तो पता ही है, we are always there to help you out. वेदांतु में you can always join a live course जहाँ पे आपका entire syllabus पढ़ाया जाएगा for your Maharashtra board. Already batches are running, so you can enroll yourself now. Live online class with high level quiz. Quiz हम लोग बार बार लेते हैं, let us say after 10-15 minutes. क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे आपको कितना आया है तो वो हाई लेवल क्विज के हिसाब से, भले ही क्विजेस है, भले एमसीक्यू टाइप में हम क्विज पूछे, लेकिन उतना तो आइडिया आ जाता है कि बच्चे को समझा है कि नहीं समझा है. सो विल बी हैविंग हाई लेवल क्विज. योर
फास्ट ट्रैक योर HSC प्रिपरेशन विद वेदांतु. एंटायर सिलेबस कवर होगा आपका. All the doubts will be solved. Like in Vedantu, we have a very superb thing which others are now promoting, but we already have it in Vedantu since long, right? We have a 2-teacher module. Like if the batch is big, we as a master teacher are teaching, but if some of the student is having doubt, तो क्या होगा, मास्टर टीचर का भी अटेंशन ना जाए और बच्चे का भी डाउट क्लियर हो पाए. इसके लिए वी हैव वन मोर टीचर, क्लास टीचर, हु हेल्प्स द स्टूडेंट इन गेटिंग देयर डाउट सॉल्व. ऑब्वियसली ये बहुत बड़े बैचेस रहेंगे तो ये होता है, नहीं तो मास्टर टीचर्स तो है ही आपके डाउट क्लियर करने के लिए हर बार तैयार बेकरार. ठीक है. सो अदर्स आर कैचिंग अप विद इट राइट नाउ. वी ऑलरेडी हैव दिस फीचर. नाउ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स. टॉपिक वाइज असाइनमेंट से आप हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. जैसे ही एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे ही एक क्लास होगा, तुरंत उस क्लास से रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छे से वो असाइनमेंट कर पाओ और अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट टाइम हमें पूछ भी पाओ. एंड देन वी हैव मॉक टेस्ट. स्पेशली दिस इज फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. HSC एग्जाम जिनको है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है. 11th स्टैंडर्ड के लिए भी वी आर कीपिंग चैप्टर वाइज टेस्ट और स्पेसिफिक पोर्शन वाइज टेस्ट, ताकि आपका स्कूल में या कॉलेज में जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसका एटलीस्ट आपको तैयारी करने का मौका मिले. सो आपको माइक्रो कोर्सेस अवेलेबल है, ढेर सारे माइक्रो कोर्सेस है फॉर योर MH बोर्ड एज वेल, ताकि आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर या यूनिट में कुछ तकलीफ है तो उस रिलेटेड माइक्रो कोर्स आप देख पाओ और क्लैरिटी ले पाओ फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट, not the full entire syllabus. तो it is free of cost if you are choosing Vedantu, if you are subscribing Vedantu. आपको rates तो पता ही है, आपको plans तो पता ही है. आपने definitely एक बार तो वेदांतु साइट पे आप गए ही रहेंगे, नहीं गए रहेंगे तो तुरंत जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग डील्स हम आपको लेके आए हैं. यू कैन चेक दिस SN Pro. ये जो SN Pro ये कूपन कोड है, ये यूज करो और 10% ऑफ स्ट्रेट अवे. वॉट एवर इज योर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, 10% ऑफ होगा. दैट आई विल गारंटी. SN Pro ये कूपन कोड आपको याद रखना है. गाइज, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड. कॉमर्स वाले हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं. सो वेलकम है आप सभी का वेदांतु में. I'll be seeing you all soon in our Vedantu normal batches. And people, as I have said, you can get 10% discount while using the coupon code. तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाओ यार. तुरंत जाओ साइट पे, डिस्क्रिप्शन में आपको ये साइट मिलेगा. देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे अपना सेशन अभी चल रहा है वहाँ पे आपको ये साइट मिलेगा. एंड स्ट्रेट अवे यू कैन गो टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट. तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं होता है. स्टे ट्यून्ड. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो आगे हम लोग यही चैप्टर से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड है, हमें बहुत आराम से जाना है, सब समझना है. तो वी आर गोइंग वेरी स्लो. ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं दे रहे 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा के. सो दैट इज द रीजन टुडे आई एम वेटिंग हियर इटसेल्फ. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड हिट द बेल आइकन फॉर V-Commerce. एंड आपके फ्रेंड्स को भी ये बता दो, उनको भी एडवांटेज है. यूट्यूब तो चलो आजकल सभी के मोबाइल में अवेलेबल है, तो प्लीज़ उनको भी ये बता दो और आप खुद सब्सक्राइब और लाइक करो. थैंक यू सो वेरी मच. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. एंड यस पीपल, डू टेक योर वैक्सीन्स एज वेल इफ पॉसिबल. अभी आपके लिए भी वैक्सीन्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ टेक योर वैक्सीन्स. बी सेफ. wear your mask अगर कहीं पे जाना है. Thank you so much. We'll meet very soon.